बाहर निकल निकल। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप इस विश्व में कहां पर है। एक चमत्कार होने वाला है आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में। आप आजाद हैं। यह मौसम है चमत्कारों और This is Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris. Greatness is known to all generations, Lord Jesus.
of Jesus. The name of Jesus holds the highest authority. It's the ultimate healing song. The power of his name restores and renews and brings to life everything that is dead. The name of Jesus. The name of Jesus. Oh, the highest authority. It's the ultimate. The ultimate healing song. The power of his name. The power of his name. Restores and renews and brings to life everything that is dead. His name gives you strength, wellness, and vitality, and grants you the right to live perfectly. It doesn't matter the pain you feel or what the doctor said. The name of Jesus makes you free. Yeah, yeah. In Jesus' name, you are whole again. In Jesus' name, you have your miracle. Just receive the word of God. You are healed today. You are changed in his name. In Jesus' name.
every sick body in this place. You're raising many dead bodies in Jesus' name. We are bringing back sanity to many minds, transforming every situation through the light of God's word. As we sing, it is there. Just look around, and you will be well. As we sing, and sing, I release to you, and you will be glad. You will have a testimony of your healing today, and you will be full of thanks for what the Lord has done. You will have your testimony of your healing today, and you'll be full of new. There is nothing we can make, and in the mighty name of Jesus, we proclaim today is for you. Solution has come. Rejoice as we say, in the just look around, and you will be well. As we sing, here in spring, I release to you, and you will be glad. You will have a testimony of your healing today, and you will be full of thanks for what the Lord has. You will have your testimony. Yes, you will of your healing today. You will be full of thanks for what the Lord has done. You will have a testimony. The blind will see, the lame will walk, the deaf will hear, the dead will be raised, and you'll be full of thanks for what the Lord has done. You will have a testimony of your healing today, and you will be full of thanks for what the Lord has done. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया All हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूरे विश्व भर में हालेलुया हालेलुया praise the Lord. वाह 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 परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी का स्वागत है हीलिंग स्ट्रीम लाइव हीलिंग सर्विसेज में अक्टूबर 2023 एडिशन में। और परमेश्वर के जन्म का ये बड़ा होने वाला है और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये विश्व भर दिया जाएगा। और मैं आप सभी से विनती करूंगी कि आप अपने दोस्तों से, परिवार से, रिश्तेदारों के साथ अपने लिंक को शेयर कीजिए और उनको इनवाइट कीजिए इस प्रोग्राम में। हम लाइव है हीलिंग स्ट्रीम्स टीवी पर, हम हीलिंग स्ट्रीम्स मोबाइल ऐप पर लाइव है और हमारे हर एक मिनिस्ट्री नेटवर्क्स और प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव है। तो जुड़ जाइए, हर एक को बताइए हीलिंग स्ट्रीम्स के बारे में, लिंक्स को शेयर कीजिए।
मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे का। धन्यवाद पास्टर, धन्यवाद इस अवसर के लिए, धन्यवाद हमें मौका देने के लिए कि हम सुसमाचार को विश्व के अंत तक लेकर जाए। हम अगले कुछ क्षणों में हम प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद देंगे परमेश्वर का। हम एक प्रेइंग पोजीशंस को लेंगे जहाँ पे हम गंभीरता से प्रार्थना करेंगे। हो सकता है कि आप बस में हो, ट्रेन में हो, लेकिन एक अपने पास एक माहौल को तैयार कीजिए कि आप प्रार्थना कर सके। और हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए और उस धारा के लिए जो पूरे विश्व भर में बह रही है आज हीलिंग स्ट्रीम्स के द्वारा। Koramasha kasenta kalabasota riba shakasenta korabajenta kobazeta rika shante kolebasata lenta koramashta kibasota rabayekesha ragaligonte koremashta kibasonta rabasheke basante libranta koremaje ke basante kolebasata libranta koremashta kabashenta koremasheke liga sonta koremaja kabasonta rabashete lebrata koremashto kabashete kobazenta koremash Taki basata le bariga zopariga sheta koba santa koremaje le branda koma zebrante koba sheke basanta la bazeta le gramanto karabashte ki bashonta ki basate librata koremashto karabashe ke basante liba riba zapraka sheke basonta la bashenta. Thank the Lord for answers to prayers. Yes, the answers have started. As the meeting has started, the answers have started. धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का हर एक उत्तर के लिए। जैसे मीटिंग शुरू हुई है, हमने उत्तरों को ग्रहण करना शुरू किया है, हमने चंगाई को ग्रहण करना शुरू कर दिया है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। Oh, Barika Sakarabashante. Thank God for everyone that you have invited. No one will leave the way they came. परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए हर उस व्यक्ति के लिए जिनको आपने इनवाइट किया है, जिनको आपने इस प्रोग्राम के विषय में बताया है। धन्यवाद दीजिए उनके जीवनों के लिए, धन्यवाद दीजिए। Oh, hallelujah. Father, we thank you. We thank you, Lord, for your grace. We thank you, Lord, for this. हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके करुणा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद चंगाई के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हर उस व्यक्ति के लिए जिनको हमने इनवाइट किया है। धन्यवाद परमेश्वर, हमने उन उत्तरों को ग्रहण किया है, हमने चंगाई को ग्रहण किया है। धन्यवाद परमेश्वर, जो कुछ भी आप अरबों लोगों के जीवनों में आज कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? जैसे हम इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी आशा के साथ उत्साहित रहिए। हम वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 107 वचन 20वां अध्याय। वो कहता है कि उसने अपने वचन को भेजा और उनको चंगाई दी और उनको उपद्रव से बचाया। परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, वो चंगाई का वचन आप तक आ रहा है। और आपको क्या करना है? आपको केवल विश्वास करना है और तुरंत ही जो वचन कहता है वो आपके जीवन में आप होता हुआ देखेंगे। चंगाई आप तक आ रही है वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, आराधना के द्वारा। चंगाई आप तक आ रही है सामर्थी रूप के द्वारा, सामर्थ के साथ चंगाई आप तक पहुंच रही है। ध्यान से सुनिए वचन को, ध्यान से सुनिए, विश्वास कीजिए वचन, विश्वास कीजिए वचन पर विश्वास कीजिए। हम वचन पढ़ेंगे
147वां अध्याय भजन संहिता का और 15 वचन ये कहता है, और वो अपने क्रमान को पूरे विश्व भर में भेजता है और उसका वचन तेजी से उसको पूरा करता है। जब ये प्रोग्राम निर्धारित किया गया था, ये एक ऑर्डर था, ये डिक्लेयर किया गया था कि पूरे विश्व भर में पूरा विश्व चंगाई से भर जाएगा। और जैसे वचन आप तक आ रहा है, वो तेजी से आपके पास चंगाई को लेके आ रहा है, वो आपके पास शांति को लेके आ रहा है। तैयार हो जाइए, वचन तेजी से आपके पास आ रहा है समाधान के साथ। ये आपका सेट टाइम है, ये आपका निर्धारित समय है। किस तरीके से आप कनेक्ट होते? सबसे पहली चीज जो आप करते हैं, आप अपना पूरा ध्यान देते हैं। जब हम आपको कहते हैं प्रार्थना करने के लिए, आप प्रार्थना करते हैं। जब हम आपको कहते हैं खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। जब हम आपको कहते हैं कि हाथ रखिए, आप हाथ रखिए। जब परमेश्वर के जन आपको वचन देते हैं, आप वचन को करते हैं। हो सकता है कि परमेश्वर के जन किसी और के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो वचन आपके लिए है, वो वचन आपके लिए है। मुझे याद है एक महिला जो जन्म से बहरी थी, परमेश्वर का वचन पास्टर क्रिस के द्वारा उस महिला के आया और दूसरी महिला चंगी हुई। आपको करना क्या है? आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। गंभीर रूप से ध्यान दीजिए इस प्रोग्राम में, और सब कुछ संभव है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। हम आराधना के क्षण में जाएंगे, और जिस क्षण से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, भाइयों और बहनों, चंगाई उसी क्षण से शुरू हो चुकी है। और अपनी गवाहियों को हम तक भेजिए, अपने पिक्चर को हमको भेजिए, अपने पिक्चर्स को हमें भेजिए, अपनी गवाहियों को हमारे तक भेजिए। मैं बहुत उत्साहित हूँ। आज वो दिन है महिमा का, आज वो दिन है चंगाई का, आज वो दिन है चिल्लाने का। वचन आपके पास आ रहा है, तेजी से आप तक आ रहा है, वो सब कुछ लाते हुए जिनकी आप आशा कर रहे थे। ये समय है आराधना का, ये समय है आराधना का। Darkness, giving my life to the Lord, and I'm never gonna turn back. My face is set like a flame, like a lion on its prey. I'm dedicated to His word, and my faith is in His name. He's the God of peace, and the giver of hope. He's the God of our salvation. I'll tell the world of His love. He's the God of peace. He's the God of peace, and the giver of hope. He's the God of our salvation. I'll tell the world of His love. The Lord Jesus loves you so much, He gave His life for you. He took your sorrows and bore. He took your sorrows and bore your pain. Despised your shame and Calvary. He did all because He cares for you. All you've got to do is just believe. All you got to do is just believe in His hand. His mighty powers at work. His mighty powers at work in you right now. Rise and believe. Rise and believe. Rise and believe. Oh,
dark. The Lord is here to deliver you. He'll take away that heavy burden that has weighed you down with pain. You are sick and panic stricken, with all the pain from disease and sickness. Jesus is here to heal you now and give you total freedom. Oh, He is. He's the God of peace and the giver of hope. He's the God of He's the God of our salvation. Tell the world of His love. He's the God of peace. He's the God of peace and the giver of hope. He's the God of power. He's the God of our salvation. Tell the world of His love. The Lord Jesus loves you so much He gave His life for you. He took your sorrows and bore. He took your sorrows and bore your pain. Despite the shame and Calvary. He did all because He cares for you. All you got to do is just believe it. His mighty powers at work. His mighty powers at work in you right now. Rise and be. Put your faith in His name. Put your faith in His name. You'll have your miracle. Oh, rise and set your gaze on Him. Set your gaze on the Lord, Master Jesus. You'll have your miracle. Oh, today. Rise and begin. Yeah. It's the God who never fails. He's able, what a neighbor, to do much more than we ask of Him. He's able, what a neighbor. He's able, what a neighbor, to do much more. But I never, all the pains will be gone. The situation will change. Your tears wipe away. Your sickness taken away from you. Just believe in it. All the pains will be gone. Sorrows will be over. Troubles taken away from you. Just believe in it. Your situation will change. Your tears wiped away. The sickness taken away. Just believe in it. You will be free, yeah. You will be free.
glory is all around. His place is filled with the presence of miracle power and love, the Holy Spirit. His glory is all around. His face is filled with the presence of miracle power and love. The Holy Spirit, it's His glory is all around. This place is filled with the presence of miracle power and love.
क्या दिन है आज का। हम कितने आशीषित हैं। हम गवाह हैं। हम गवाह हैं परमेश्वर की सामर्थ के, उसके अनुग्रह का हमारे जीवनों के ऊपर। हम कितने आशीषित हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे पिता, मेरे लाइफ कोच का, मेरे पास्टर का। धन्यवाद पास्टर, आपके हाँ के लिए जो आपने परमेश्वर को कहा। इस हीलिंग स्ट्रीम के लिए धन्यवाद। जो परमेश्वर ने आपसे कहा वो आज वास्तविकता है। हीलिंग टू द नेशन, हर देश स्वर के नीचे वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को। आपकी सेवकाई हीलिंग स्ट्रीम्स के द्वारा इस सम्मान के लिए, इस महिमा में सम्मान के लिए, इस सत्र के अनाउंसर के रूप में इस सच्चाई को बताने के लिए जो सामर्थ परमेश्वर ने मैनिफेस्ट की है लोगों के जीवनों के ऊपर, जिसके द्वारा हम पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहा है। धन्यवाद पास्टर, धन्यवाद। आप सभी को बधाई है इस हीलिंग स्ट्रीम्स लाइव हीलिंग सर्विसेज के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद पास्टर। परमेश्वर वास्तविक है। परमेश्वर वास्तविक है। आपको जानना जरूरी है कि परमेश्वर क्या कर रहा है अभी के समय में, अभी के मौसम में, और कितने नजदीक है हम। यही कारण है हम आपको गवाही बताते हैं, उन लोगों की गवाही बताते हैं जिनका जीवन परमेश्वर ने बदला है उसकी महान सामर्थ के द्वारा। पूरे विश्व भर में हीलिंग स्ट्रीम्स के द्वारा, पास्टर क्रिस के द्वारा, और विशेषकर हीलिंग स्ट्रीम्स के द्वारा हमने चंगाई, गवाही, चमत्कार, मृत्यु जीवित हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, हर प्रकार की गवाही। और आज हम सम्मानित हैं। हम सम्मानित हैं कुछ गवाहों को हमारे बीच में सुनने में। वो अपनी कहानी बताएंगे। कल तक वो आपके जैसे थे, कल तक वो एक अपनी परेशानी को देख रहे थे, लेकिन आज उनके पास एक कहानी है, एक गवाही है आपके साथ बताने के लिए, साझा करने के लिए। मैं शुरुआत करना चाहूँगा इस गवाही के सत्र को। ये बहुत अद्भुत क्षण है। ये आज आपका दिन है, आज आपका समय है। जैसे ही आप इन गवाहियों को सुन रहे हैं, अपने हृदय को खोलिए, सुनिए उनकी गवाहियों को, जो वो कह रहे हैं, जो जिस परिस्थिति से वो गुजरे, जिस परेशानियों से वो लंबे समय से गुजर रहे थे, किस प्रकार से उन्होंने अपनी चमत्कार को ग्रहण किया, कैसे उन्होंने अपनी गवाही पाई। सुनिए उनको और अपनी गवाही को ग्रहण कीजिए। सुनिए इन गवाहियों को। होने दीजिए कि आपका विश्वास उठे। अपने विश्वास को उठाइए। यह आपका समय है, यह आपका समय है। मेरे पास कुछ गवाहियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा आप बैठिए, ध्यान से सुनिए, इस वीडियो क्लिप को ध्यान से सुनिए, और फिर मैं आपके पास वापस आऊँगा आगे की कहानी बताने के लिए। ये 58 वर्ष की महिला जिसको परेशानी थी स्किन डिजीज से, डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कभी क्योर नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं है, और उनको कई सारे ट्रीटमेंट बताए गए थे, लेकिन उन ट्रीटमेंट्स के बाद भी उसकी परेशानी बढ़ते गई। वो जो सफ़ेद दाग उसके शरीर में बढ़ते गए, उसके शरीर में घाव बढ़ते गए। इस परिस्थिति के कारण
उनको बैंडेज बांधना पड़ा और उनको 11 साल तक एक कड़ी डाइट दी गई थी जो उनको फॉलो करना पड़ा। वो कई हॉस्पिटल्स में भी गए लेकिन कभी कोई बदलाव नहीं आया और वो परमेश्वर की ओर मुड़ी और उन्होंने हीलिंग स्ट्रीम्स के बारे में सुना, पास्टर क्रिस के हीलिंग स्ट्रीम्स के विषय में सुना और वो जुड़े लाइव हीलिंग सर्विसेज के द्वारा मंगोलिया से वो जुड़े और फिर परमेश्वर के जन ने उनका नाम लिया, सीरियासिस मंगोलिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं उस शैतान को तुम्हारे शरीर से भगाता हूँ। और उस समय के बाद से पौलुस के जीवन में एक नया बदलाव आया। वो सरायसिस के पूरी तरीके से मुक्त हो चुकी थी। कितनी अद्भुत गवाही, हालेलुया। भाइयों और बहनों, बोलामन आज हमारे साथ हमारे बीच में है। क्या हम बोलामन सगा को बुला सकते हैं मंगोलिया से? ओ हालेलुया, हालेलुया, वाओ। बोलामन आपका स्वागत है। हाँ, यह अद्भुत है। धन्यवाद हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ने के लिए। बताइए अपनी कहानी। हमने आपको स्क्रीन पर देखा, अभी हम आपको देख रहे हैं, आप बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। दो 2001 में बहुत भयानक चीज़ मेरे साथ हुई जिसके वजह से मैं पूरी तरीके से शॉक में थी। मैं 2 दिन तक सोच रही थी कि ये क्या हो गया है मेरे साथ, और ये मेरे सिर से शुरू हुआ। और 1 साल के भीतर ही ये पूरे मेरे शरीर में फैल गया। और एक बार मैंने केवल नेल पॉलिश लगाया और उसने मेरे पूरे नाखून को खराब कर दिया। और आखिर में मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं कुछ नहीं खा पाती थी। मैं कुछ खाती थी तो मेरे शरीर में उसका एक प्रभाव होता था। और जब वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि ये परेशानी आपके नसों से है। एक दिन जब वो सड़क पर थी, एक आदमी ने उसको पत्थर से मारा पीठ के ऊपर और वो बुरी तरीके से घायल हो गई थी, जिस कारण से वो सो नहीं पाती थी अपने पीठ के सहारे। उसने अपने लिए मसाज मैट्रेस भी मंगाया। डॉक्टर ने कुछ तरीके बताए जिसकी वजह से दर्द कम हो गया था, लेकिन जो स्किन की परेशानी थी, त्वचा की जो परेशानी थी, वो बढ़ती ही जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके ऊपर एक भारी सा जैकेट डाल दिया है और वो अपने आप घूम नहीं पाती थी। वो एक स्थिति में स्थिर रह गई थी। मैं सोचती थी कि मैं क्यों आज इस परिस्थिति में हूँ।
मैं क्यों इस बंधन में हूँ। मैं कभी भी अपने आप को देखना नहीं चाहती थी। मैं कभी भी अपने आप को लोगों के सामने नहीं लाना चाहती थी, मेरे त्वचा की परेशानी की वजह से। मैं लोगों को अवॉइड किया करती थी। मैंने चर्च जाना बंद कर दिया, मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया। एक दिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया मंगोलिया की राजधानी में। परमेश्वर ने मुझे बुलाया उस समय। और जब मैं राजधानी पहुंची मंगोलिया के और मैंने चर्च को ढूंढना शुरू किया, वो संदेश को सुना करती थी। मैंने बहुत सारी चीज़ों का प्रयास किया और मैं जानती थी कि मेरी स्थिति बहुत बेकार होती जा रही है। और मैंने मन बनाया कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी। मैंने हार मान लिया था। और फिर मैंने मन फिराव किया और मैं वापस चर्च गई। үздэг байсан нэг дараагийн нэг удаа Монгол агштай бис пастрын юу агшсан. और फिर मैंने पास्टर क्रिस के हीलिंग स्ट्रीम्स के विषय में सुना और मैंने यूट्यूब पर इसको पाया। और फिर मंगोलिया भाषा में ट्रांसलेशन शुरू हुआ। एक पुस्तक वास्तविकता संग्रह जो पास्टर क्रिस के द्वारा लिखा गया था, और जब मैंने पढ़ा मैंने पाया इसमें लिखा हुआ हर एक शब्द मेरे लिए है। और मैंने वो सब चीज़ें वास्तविकता संग्रह के द्वारा सीखा। और पिछले जुलाई एडिशन में मैं मंगोलिया से हीलिंग स्ट्रीम्स को मैंने अटेंड किया। और अगले दिन
और अगले दिन जब पास्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैंने पाया कि कुछ चीज़ ने मुझे छुआ, परमेश्वर ने मुझे छुआ। एक एक पास्टर उस तक आए और उनसे कहा कि आप इंग्लिश सीखिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो चंगाई ग्रहण करें, क्योंकि वो चंगाई ग्रहण करेंगे क्योंकि ये परमेश्वर का विश्वास है। क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि जो आप मांगोगे वो वो आपको दिया जाएगा। उस पर विश्वास कीजिए। आपको बधाई हो, आप कितने सुंदर दिख रहे हैं। आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं। जब उन्होंने चंगाई ग्रहण किया, वो चंगाई से वो सामर्थ से भरी हुई है। वो खुद को आईने में देखने से अब नहीं डरती हैं। वो काफ़ी सुंदर हैं अभी। वो महसूस करती हैं कि वो एक नए व्यक्ति हैं। वो महसूस करते हैं कि वो 25 साल की हैं। आप दिखती हैं 25 साल की, लेकिन मैं 60 साल की हूँ। आपको बधाई हो। हालेलुया, क्या चंगाई है। वाह। हम परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस को क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उनके मिनिस्ट्रेशन के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए। परमेश्वर ने इस्तेमाल कर रहा है काफ़ी सामर्थी तरीके से। सिर्फ वचन को सुसमाचार सुनाने में, सिर्फ सुसमाचार सुनाने में नहीं, लेकिन चंगाई में भी, लोगों तक चंगाई को लेकर जाने में भी, और मंगोलिया में चंगाई को लाने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यह आपका दिन है। सोचिए इस गवाही के विषय में, सोचिए उस बदलाव के विषय में। यह आपकी कहानी होगी आज। जैसे आप इन गवाहियों को सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए इन गवाहियों को। होने दीजिए कि आपका विश्वास उठे। चीज़ें हो रही हैं पूरे विश्व भर में इस समय। मेरे पास एक और गवाही है जो मुझे विश्वास है आप सुनना पसंद करेंगे।
हम आगे बढ़ रहे हैं और विश्वास आपके पास मजबूती से आ रहा है। मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से इस गवाही को सुनिए और हम आपके पास फिर आएंगे आगे की कहानी के साथ। In Jesus' name, All things are possible. Your faith in me will make you whole. For He sees. Till He save and deliver you. They come expecting more miracles. And today is that glorious day. In Jesus' Man of God tentatively takes a look at their case carefully considering each case with so much compassion and love. And now he begins to approach those on the healing line. This is the end of HIV, as one by one they receive their healing with just one touch from God. Infertility has come to an end. Hepatitis B has just been healed right now. The man of God touches his man. Sickle cell anemia. These twins have received their healing. Can somebody shout glory? Jeremiah 30 verse 17 says, For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord. And now the death out of it. He takes deep breaths of the anointing. John is just 26 years old. He's received new kidneys. Glory to God. Look at him go. Man of God approaches Oswald, 51 years old. Suffering from leukemia and septic ulcer. Oh, that's the power of God go through Oswald. And man of God declares him free. Hallelujah. This is June. June is 39 years old. He traveled from Uganda. He suffered from varicose veins, meaning his legs were very weak. But now they have received their strength. Oh, hallelujah. And he's 43 years old. Subjected to custody of the Lord. He is another of 2 children and his auntie. Vitalized by the power of the Holy Ghost. See the man of God listen to her. see it. And that's it. Oh, she's got it. And family can rejoice to receive her again home. This is Anita. Anita came from Ireland. She suffered from breast cancer and a chest wall tumor. That's what you're seeing on her chest right now. She traveled 14 hours on an airplane to be here from Ireland. This is her moment. And the power of God is surging through her body, dissolving every tumor, destroying every cancer. This is her moment. This is her hour. This is a set time for a miracle. See as she fixes her gaze on the man of God. Anita is up on her feet. Oh, the man of God embraces her with so much love and compassion. See you. And that's it! Oh, hallelujah! Hallelujah! Oh, glory to God! Now address the foul devil responsible for causing heart failure in Ben's life for 4 years. Ben has been
Today is his day. Man of God says he's free. Oh, praise God. Now, the man of God next to Isabella. She is a pastor from Brazil. She travels all the way. Isabella is diagnosed with carcinoid. That's her intestine. You're a little savor to give up. You will never be the same. This beautiful pastor. Today is her day. Power of God goes through. Tears are coming out of her eyes. Man of God, declare that to his spirit. Oh, hallelujah. And now the man of God approaches Humble. Humble is 42 years old. He came from Sweden. He was diagnosed with kidney failure and hypertension. And God commands the devil responsible out of Humble. Every cell in his body. And that's it. Man of God declares Humble healed. Hallelujah. This is Beverly. Beverly is 27 years old and was diagnosed with lung cancer. Cutting all her dreams for life. This terrible diagnosis has kept her at home 2 years. Cervical cancer and blurry vision as well as right now, multiple cancers are being healed by the power of the Holy Ghost. Nowhere in the world can you find something like this happening. And God commands the devil out from him. A spiritual operation is taking place right before our very eyes as every cancer cell is destroyed. The name of Jesus is glorified. You're here. And that's it. She's healed. Oh, it is joy and celebration here at the Healing Streams Live Healing Services, where many are celebrating their miracles, and many more at home are rejoicing for family members being made whole right here, right now. Man of God asks those to stand. Jesus is here today. Miracles come. Yes, a miracle has come. Hallelujah. The same Jesus is here with no more. Your miracle Where's has God? come. Hallelujah. Oh, hallelujah. The great physician is here. The great physician is here. The great physician is he. Feeling forsaken, lost and alone, your hope's been crushed, body bruised and scarred. Doctors given up on you. ग्राहम, न्यूजीलैंड, अर्थराइटिस। मैं आप तक चंगाई लेकर आया हूँ ग्राहम, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके सिर के मुकुट से लेकर पैर के तलुओं तक आप छुड़ाए गए हो, आप छुड़ाए गए हो, चंगे किए गए हो। आप आज़ाद हो, आप आज़ाद हो, आप अपना शरीर हिला सकते हैं। ये हो चुका है प्रभु यीशु के नाम में। ग्राहम, ये हो चुका है। मरिया, साउथ अफ्रीका, अर्थराइटिस। आप आज़ाद हो प्रभु यीशु के नाम में। आप आज़ाद हो अपने दर्द से। आपका कमर का दर्द चला गया है, कमर का दर्द गया है प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर।
डैंटस USA, अंधकार की शैतान, मैं आदेश देता हूँ उसके शरीर से निकलने का प्रभु यीशु के नाम में। उसको जाने दे, उसको जाने दे प्रभु यीशु के नाम में। शैतान जा चुका है। छाया इंडिया, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैं सीधाई को लाता हूँ उन ट्यूब्स में प्रभु यीशु के नाम में। Thank you, Lord Jesus. Oh Lord, my God, how powerful is your name. Oh Lord, my God, how glorious is your name. How excellent 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 is your name. Oh Lord, my God, how powerful. Oh Lord, my God, how glorious. Oh Lord, my God, how powerful is the name. Oh Lord, my God, how glorious. How excellent. In all the earth, Lord. Your name is the greatest of all. Oh yes, mountains crumble at your name. Oh Lord, my God, how powerful is your name. Oh Lord, my God, how glorious is your name, Lord. How excellent, how excellent is your name. In all the earth, how excellent is your name. How excellent is your name. You are amazing. Oh Lord, you are a wonder. You're the great King of glory. How excellent is your name. You are amazing. You're the great King of glory. How excellent is your name.
is your name. How powerful is your name. How glorious is your name. How glorious is your name. How powerful. Your name is the strongest of all. Your name is the greatest of all. How glorious, glorious, excellent, marvelous, wonderful. How powerful is your name? Great and mighty God. How powerful is your name? How glorious, mighty God, everlasting Father. How glorious is your name? Oh Lord, my God, how powerful is your name? Awesome in all your ways you are. Oh Lord, my God, how glorious is your name? Oh Lord, my God, Lord, you are powerful. Powerful is your name. Wonderful is your name. Oh Lord, my God, how glorious is your name. You're glorious in all your ways. How excellent is your name. 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 Open your mouth and thank Him. धन्यवाद दीजिए जहाँ कहीं पर भी आप हैं, उसके अनुग्रह के लिए, उसके प्रेम के लिए, चंगाई के लिए पूरे विश्व भर में धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दिए। उसका नाम महान नाम है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में से जीवित किया और उसे महिमा दी। कितना अद्भुत है जो वचन कहता है। चलिए हम देखेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय 20वां वचन। यह प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात कर रहा है। उसके ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी। महिमा दी, महिमा दी। प्रभु यीशु मसीह महिमामय है, वो महिमामय है, वो महिमामय है। उसका नाम महिमामय है। चलिए हम जाएंगे यूहन्ना की पुस्तक में 14वें अध्याय 13वें वचन में। यह अद्भुत है। चलिए 14वें वचन पे जाएंगे। यदि तुम मुझसे मेरे नाम में कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। कोई राजा सम्राट ये कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता। आपके पास पूरी सामर्थ होनी पड़ेगी इस वचन को कहने के लिए कि जो कोई मेरे नाम में कुछ मांगेगा मैं उसे कर दूंगा। वो हमसे कितना प्रेम करता है, वो हमारी कितनी सहायता करना चाहता है। देखिए कितना बड़ा है। आप मेरे नाम में कुछ भी मांगोगे, एक व्यक्ति
प्रभु यीशु मसीह के पास गया। शासन करता था एक आराधनालय का, उसकी बेटी बीमार थी और वो यीशु मसीह को खोज रहा था। और जब वो उसे पाया, उसने कहा, स्वामी, मेरी बेटी मर रही है, मेरी सहायता करो, उसे छू कर उसे चंगा करो। यीशु मसीह ने कहा, मैं आता हूँ। और जब वो रास्ते पर ही था और जब वो वहाँ पर था, उन्होंने संदेश लाया उस पुरुष के घर से। उन्होंने कहा कि स्वामी को मत बुलाओ, आपकी बेटी मर चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने सुना जब वो इस संदेश को उस व्यक्ति को बता रहे थे। प्रभु ने कहा उस व्यक्ति से, डरो मत, सिर्फ विश्वास करो। यही प्रभु ने उनसे विश्वास करने के लिए कहा। यही प्रभु ने कहा उसे, विश्वास कर, केवल विश्वास कर। यही वो आपसे मांग रहा है। उसने आपसे कुछ नहीं मांगा, उसने केवल विश्वास मांगा। और आप कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं? आप अपने हृदय से उस पर विश्वास करते हैं। आपका दिमाग खेल सकता है, यहाँ वहाँ घूम सकता है, लेकिन आप अपने हृदय से उस पर विश्वास करते हैं। आप अपने हृदय से उस पर विश्वास करते हैं। हम अपने विश्वास को दिखाते हैं हर समय, हर समय। जब आप एरोप्लेन में बैठे उड़ने के लिए, जब आप प्लेन में बैठे, आपने पायलट के क्वालिफिकेशन पेपर्स कभी नहीं मांगा। आप बस प्लेन में गए और बैठ गए। आपने कभी उनसे नहीं पूछा कि आप में लंदन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। आप केवल बैठे। अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ जा रहे हो, आप कहेंगे मैं यहाँ जा रहा हूँ। प्लेन ने उड़ान ली, आपने किसी से कंफर्म किया कि प्लेन कहाँ जा रही है? आपने नोटिस किया ये कहाँ जा रही है? मुझे लगा कि हम फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं, मुझे लगा। कैसे आपको पता है कि ये पायलट क्वालिफाइड है उड़ाने के लिए? आपके पास विश्वास था सिस्टम में। ये विश्वास था, ये विश्वास काम कर रहा था, ये विश्वास था, ये विश्वास था जो काम कर रहा था। आप विश्वास कर रहे थे। आपको एक नौकरी मिली एक किसी कंपनी में। उन्होंने आपसे कहा कि आपको महीने के आखिर में वो आपको पेमेंट करेंगे। क्या आपने कभी खोजने का प्रयास किया कि क्या उनके पास वो पैसे हैं भी या नहीं? आपने बस विश्वास किया। और ये दो एग्जाम्पल, उदाहरण मैंने आपको दिया। ये दो उदाहरण भी फेल होते हैं। प्लेन हाईजैक होते हैं, प्लेन कहीं और जाती है। किसी को नौकरी मिली बड़ी कंपनी में और अगले ही सप्ताह वो कंपनी खत्म। हम अपने विश्वास को इस्तेमाल करते हैं हर समय। आप टैक्सी लेते हैं, आप कभी ड्राइवर से नहीं पूछते कि क्या आपको टैक्सी चलाने आती है। आपको विश्वास है सिस्टम में, और उन्होंने आपको वहां ले गया जहां लेकर जाना था। हम विश्वास को हर जगह दिखाते हैं। अगर आप अपनी थोड़ी सी विश्वास प्रभु यीशु मसीह में लगाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। सब कुछ सही हो जाएगा। Kola angradigos koja para haliges. Kilarondo govra sika para haliges. इस विश्व के द्वारा धोखा मत खाइए। नहीं, मत
मत चलिए इस विश्व के आधार पर, इस सिस्टम के आधार पर मत चलिए। मनुष्य एक आत्मा है, आप एक आत्मा है, ना कि एक शरीर। आपके पास योग्यता है विश्वास करने की, परमेश्वर में विश्वास करने की। मैंने एक धार्मिक व्यक्ति को कुछ समय पहले कहा था, उसे यीशु मसीह नहीं पता था, लेकिन वो हर समय प्रार्थना किया करता था। मैंने उससे कहा, क्या आप स्वर्ग में विश्वास करते हैं? उसने कहा हाँ। मैंने कहा, क्या आप आशा करते कि आप किसी दिन वहाँ पर जाओगे? उसने कहा हाँ। कैसे आप जाओगे? क्या किसी ने आपको आश्वासन दिया कि आप वहाँ जाओगे? उसने सोचा और उसने अपने विचार किया कि मुझे किसी ने वादा नहीं किया कि कोई मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा। कैसे आप जाओगे? जब मैं जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। कैसे आप जाओगे मृत्यु के बाद वहां पर? उसने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। आपको जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा मरने से पहले। आपको अपना भविष्य जानना पड़ेगा। और आपको पता है, और इन सभी चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया। जीवन की हर प्रश्नों का प्रभु ने उत्तर दिया। जीवन के हर सवालों के जवाब को प्रभु ने उसका उत्तर दिया। एक बहुत सुंदर चीज़ है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। जब उसने पिलातुस के साथ बातचीत शुरू की, यूहन्ना की पुस्तक एक सुंदर डायलॉग, उसको गिरफ्तार किया गया था झूठे अपराध के विषय में। चलिए हम 16वें वचन से पढ़ेंगे। हम 36वें वचन पर जाएंगे। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? मैं NIV से पढ़ना पसंद करूंगा आपके लिए, इंग्लिश के नए वर्जन के साथ। चलिए पढ़ते हैं। हम 36वें वचन से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते, मेरे गिरफ्तारीपना को वो रोकते। मेरा राज्य कहीं और का है। अद्भुत। हम 37वें वचन को देखते हैं। तो क्या तू राजा है? पिलातुस ने कहा। यीशु ने उत्तर दिया, तू आप ही कहता है मैं राजा हूँ। मैं इसीलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। पिलातुस ने कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। क्या आप देख रहे हो? क्योंकि जो ग्रीक कंस्ट्रक्शन है वहां पर, ये बहुत जरूरी है। ये सत्य के ऊपर आधारित है। तू सही कहता है मैं राजा हूँ। यही कारण से मैं जन्म लिया हूँ और यही कारण से मैं इस विश्व में आया हूँ कि मैं सत्य की गवाही दूं। प्रभु यीशु मसीह इस विश्व में आया ताकि वो सत्य की गवाही दे। हर व्यक्ति जो सच्चाई के तरफ है वो मेरी सुनता है। प्रभु यीशु मसीह सच्चाई को बताने आए। वो बताने आए परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की वास्तविकता और
उसकी इच्छा को हमको बताने के लिए वो आए। दूसरे शब्दों में परमेश्वर के विचार सुनिए। प्रभु यीशु मसीह को, उसके वचन को पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह को सुनिए, वो क्या कह रहा है। बहुत से लोग अजम्पशन करते हैं, विचार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या किया। उन्होंने इतिहास की पुस्तक से प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ा। उन्होंने कभी भी बाइबल से नहीं पढ़ा प्रभु यीशु मसीह के विषय में। उन्होंने किसी व्यक्ति से सुना होगा प्रभु यीशु मसीह के विषय में जिसने बाइबल पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने खुद कभी बाइबल खोल कर नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा और क्या किया। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। बाइबल साबित किया गया है कि वो पवित्र शास्त्र है। वो आपके प्रश्नों से परेशान नहीं है, वो परेशान नहीं है आपके विचारों से, आपके संदेह से। उसके पास आपके हर प्रश्नों का जवाब है। यीशु मसीह आए ये साबित करने के लिए, ये घोषित करने के लिए परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। जो चमत्कार हमने आज रात को देखे वो दिखाता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। चलिए हम जाएंगे प्रेरितों की पुस्तक में। प्रेरितों की पुस्तक 10वां अध्याय 38वां वचन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया क्योंकि परमेश्वर ने उसे भेजा था। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ये शैतान था जो उन्हें बीमार करता है, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। शैतान ने उनको परेशान किया था, ना कि परमेश्वर ने। लोग कहते हैं कि बीमारी नेचुरल है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे हर बीमारी, हर परेशानी, आप पाएंगे कि वो शैतान की ओर से है। किसी को धोखा मत देने दीजिए। वही लोग कहते हैं जिनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं ये नेचुरल है। क्या मतलब है नेचुरल का? नेचुरल क्या होता है? और जब एक व्यक्ति मरता है, लोग कहते हैं ये नेचुरल कॉज से मरा, ये साधारण रूप से मरा। उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो कहते हैं ये साधारण है, ये नेचुरल नहीं है। हम साबित कर सकते हैं कि ये असाधारण है, और यही कारण है कि हम आपके साथ वचन शेयर कर सकते हैं अरबों लोगों के साथ, पूरे विश्व भर में। और आप इस वचन को ग्रहण करें हर जगह, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। ये केवल पहला सेशन है, हमारे पास और 3 सेशन है। धन्यवाद दीजिए उसके दया के लिए, करुणा के लिए। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए अपने पूरे हृदय से। अगर आप नए जन्म में नहीं हुए हैं, होने दीजिए कि प्रभु यीशु आपके जीवन के प्रभु और स्वामी है। उद्धार को ग्रहण कीजिए, मेरे पीछे बोलिए, और होने दीजिए कि वो आपके हृदय की गहराई से आ रहे हैं। और ओ प्रभु परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि वो क्रूस पर मरे मेरी आत्मा को बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु में से जीवित किया, और वो जीवित है आज। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु और स्वामी है। आज के दिन से मैं विश्वास के द्वारा ग्रहण करता हूँ अनंत जीवन को मेरी आत्मा में, मेरे हृदय में। धन्यवाद परमेश्वर, मेरी आत्मा को बचाने के लिए।
मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं नया जन्मा हूँ। मैं परमेश्वर की संतान हूँ आज के दिन से। आमीन। अगर आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और वचन के अनुसार आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं। उद्धार आपका है। बधाई हो। परमेश्वर को महिमा हो। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पास एक पुस्तक है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जिसका नाम है अब जबकि आप नए जन्मे हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं इस कॉपी को। अपने लिए आज ही डाउनलोड कीजिए। बधाई हो फिर से। बधाई हो फिर से। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप अपनी ऑफरिंग दे सकते हैं। यह समय है भेंट का। निकल निकल। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप इस विश्व में कहां पर है। एक चमत्कार होने वाला है आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में। आप आजाद हैं। यह मौसम है चमत्कारों और This is Healing Streams Live Healing Services with Pastor Chris.